morning everyone. After a long time again I'm going to make a video. I was quite busy in some other work, so was unable to make videos and upload here. Today we are going to discuss about the chapter number 7 of class 11th, that is test, measurement and evaluation. It's a very important chapter because in every question paper which is made by CBSE, minimum 1 or 2 questions always were there from this chapter, and we have very common topics by which we can measure our own physical condition in our personal life. So it's a very important content. Before starting the content, I just would like to say that please watch the full video, share and subscribe my channel so that you can get some other videos. And now a lot of messages are there कि I'm not uploading the videos. Actually I was quite busy in some other work, so now you will get continued videos. Thank you so much. Those who have already subscribed, thank you so much to subscribe my channel. Please promote and share with others also. I'm going to start now the content. The content is test, measurement and evaluation. Test, measurement and evaluation is very important in sports field or in physical education field, because without conducting a test, without measurement the skills of that individual or that particular, we cannot judge that the person is growing in a ascending order or his performance is going to be declined. Even not only that individual or that athlete, even we can evaluate that training system, that training methodology, that methodology is scientific and effective for the trainees or not. So this is a very important part of training as well as the sports. When we are talking about the test, see, 3 words are there: test, measurement and evaluation. जब हम इसको कभी सुनते हैं एक बार में तो हमें लगता है कि all three is similar, but test and measurement is a part of evaluation. Evaluation is a complete procedure जिसमें हमको कुछ टेस्ट भी करना होता है, कुछ मेजरमेंट्स लेने होते हैं जिससे कि हमें क्वांटिटेटिव वैल्यूज मिलती हैं, एंड after test and measurement, when we are going to put these values in a particular frame or in a particular table, then only we can find out the exact condition of or exact characteristic of that individual or group. So now I'm going to describe every topic: test, measurement and evaluation separately. When we are talking about the test is defined as a tool or as a, I can say, question or any examination by which we can find out the exact characteristic or the exact measure of any individual or any group. This is a methodology to find out the information about any individual or information about any skill. That skill is effective or completely perfect or not, or the quality of any individual or the mental presence of any individual by which we can find out the exact value. See, it would be in a form of questionnaire, it would be in a form of physical fitness test, it would be in a form of personal interview, group interview, ZD or anything. That is a that is called a test. And टेस्ट का जो एक क्राइटेरिया है वो बेसिकली हर एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के डिफरेंट हो सकता है. अगर हमें किसी का मेंटल प्रेजेंस चेक करना है, किसी का आईक्यू लेवल चेक करना है, तो क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में वो हो सकता है. अदरवाइज दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ PI, पर्सनल इंटरव्यू, or it would be in a form of a group interview or a group discussion, anything. So
this is a way to find out the information of an individual or a group. Then the second topic is measurement. Measurement is to measure anything or to measure any characteristic in a numeric value. Like फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, अभी इस चैप्टर को अगर हम ऐसे माने कि व्हाट इज इन आवर माइंड फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इसकी हमें न्यूमेरिक वैल्यू के लिए या तो हमें एक वी हैव टू गो थ्रू आउट अ टेस्ट, अदरवाइज थ्रू अ पर्सनल इंटरव्यू और अ वाइवा. सो बाय वाइवा और बाय रिटन टेस्ट वी कैन फाइंड आउट अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ आर इंटेलिजेंसी और आर नॉलेज, कि इस चैप्टर के बारे में हमारी कितना नॉलेज हमने गेन किया हुआ है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट. लाइक इसके और भी एग्जांपल्स हैं. अगर हमें अपनी किसी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को या फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी को मेजर करना है, सो वी कैन गो विद द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट. हम मसल साइज, मसल मास को मेजर कर सकते हैं, या बाय द फोर्स प्लेट we can measure the efficiency or the work, the energy generation की एक पंच में हमारा जो हाथ है वो कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है. और by for the cardiovascular strength we can use stethoscope or some other spirometer for the measuring our cardiovascular strength की कितना हमारी lungs की कैपेसिटी है. So these are the way to find a numeric value of any characteristic or of any individual, जिससे कि हमें प्रॉपरली उस कैपेसिटी का या उस इंडिविजुअल की फिजिकल कैपेसिटी हो या मेंटल एफिशिएंसी हो या उसकी किसी और सिस्टम की जो फंक्शनल पार्ट है उसकी अगर वैल्यूज को चेक करना होता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट. देन द थर्ड टॉपिक इज evaluation. Evaluation is a complete procedure to find out the characteristic or the evaluation of the value of any either characteristic or any physical value in one numeric value. Like जो भी हमें raw data मिलते हैं, the data which we are getting from measurement, that we're going to implement in a frame, either that is a table or it would be a equation or some other values or standards where we are going to put these values from measurement, and then only we can find out the data by which we can find out a exact condition or the exact characteristic of that person. Like for example हम लोग ऐसे लेते हैं कि we all are students और teachers here. Sometimes हमें जब किसी भी स्टूडेंट की क्लास में उसकी जो एजुकेशन वैल्यू है उसको चेक करने के लिए, एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए हम लोग उसका फाइनल एक एग्ज़ाम लेते हैं उसको पास करने के लिए. सी फॉर एनुअल एग्जामिनेशन टेस्ट जो उसकी वैल्यूज आती हैं, हमें बताया जाता है कि माई इवेल्युएशन इज कि आई हैव स्कोर्ड 90% इन दिस 6 स्टैंडर्ड और 5 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड, किसी क्लास की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब दिस इज माई इवेल्युएशन दैट I got 90% इन 10th स्टैंडर्ड. तो उस 90% को एवेल्युएट करने के लिए हमने किस किस प्रोसीजर से हम लोग निकले हैं. द फर्स्ट थिंग, टेस्ट मीन्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टेस्ट इन द अराउंड द ईयर, लाइक क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, देन एनुअल टेस्ट. ठीक है, इन तीनों सिस्टम्स में जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर वी आर यूजिंग, दैट इज आर टेस्ट. जो हम लोगों ने कुछ पर्सनल वाइवा भी लिया होगा, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टेस्ट. मे बी हमने फिजिकल एफिशिएंसी चेक करने के लिए बच्चों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी लिया होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेस्ट. ठीक है, आफ्टर रिटन टेस्ट
जो हमने उसका इवेल्युएशन किया है, जो हमने उसको मार्क्स दिए हैं कि 7 मार्क्स इन हिंदी, 8 मार्क्स इन इंग्लिश, 9 मार्क्स इन दिस दैट इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। हमने टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उससे उस इंडिविजुअल का जो मेंटल प्रेजेंस है या जो उसकी आईक्यू है वो हमने मेजर कर लिया। ओके, विल गेट सम न्यूमेरिक वैल्यू और रॉ डेटा फ्रॉम मेजरमेंट। टेस्ट से हमें कोई डेटा नहीं मिल रहा है, बस वो एक प्रोसीजर है किसी को चेक करने का, बट मेजरमेंट से हमें एक रॉ डेटा मिल रहा है जिसको हमने इवेल्युएशन का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जब हमें सारे टेस्ट के जो है क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या सारे जो वाइवा है हमारे या जो वर्क एजुकेशन है उन सब की जो एक्टिविटीज़ हैं सारे जो मार्क्स मिल जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस डेटाज इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ स्कोर शीट। ठीक है, वो हम लोग अब मे बी जो हमारा इक्वेशन है, हम लोग जो 20% है वो हाफ क्वार्टरली का ले रहे हैं, 30% हम लोग हाफ ईयरली का ले रहे हैं, 50% हम लोग एनुअल एग्जाम का ले रहे हैं, या मे बी वो कुछ भी हो सकता है। जब हम ये जो रॉ डेटा हमें मिले हुए हैं इन सबको हम अपनी इस फ्रेम में या इस क्वेश्चन इस फॉर्म में वापस इम्प्लीमेंट करते हैं, इस इक्वेशन फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें प्रॉपर ओवरऑल एक हमारा परसेंटेज निकल के मिलता है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। जो रॉ डेटा हमें मेजरमेंट से मिल रहा है उसको एक फॉर्म में या एक इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन, जिससे हमें एग्जैक्ट हमारी जो एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हमें एक वैल्यू निकल के आई कि आपको 90% मार्क्स इस क्लास में मिले हुए हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ evaluation. Next topic we are going to discuss about the importance of test measurement and evaluation in sports. Test measurement and evaluation is very important in sports. Already we have discussed about it that without test or without any examination we cannot know about the progress of that athlete. So this is very important thing in sports field. The first important is to classify the athlete. With a test and measurement or evaluation we can find out or we can make the categories of the athletes. जैसे कि हमें जब भी कभी एक प्लेयर्स को अलग करना होगा या उनको एक कैटेगरी में रखना होगा तो वो हमें हेल्प करेगा। हम किस स्टैंडर्ड के या किस लर्निंग फेज के स्टूडेंट्स हैं वो, लाइक अगर कोई बिगनर है तो उसका एक अलग ग्रुप डिफाइन हो जाएगा, जिन्होंने बेसिक सीख लिए हैं थोड़ा सा एडवांस कंडीशन में है उनकी अलग ही कैटेगरी आ जाएगी, एंड दोज हु आर एट द टॉप लेवल इन द एडवांस लेवल वी कैन क्लासीफाई द athletes in different categories and that helps in training a lot because हम लोग को पता है कि हर किसी का जो कैटेगरी है वो अगर अलग है तो उनके लिए ड्रिल्स करना या उनको कुछ सिखाना आसान होगा। बट सपोज किसी क्लास 1 स्टैंडर्ड में क्लास 10 का बच्चा बैठा हुआ है या क्लास 10 के स्टैंडर्ड में क्लास 1 का बच्चा बैठा हुआ है तो देयर एजुकेशन इज नॉट यूजफुल फॉर अदर्स बिकॉज जो क्लास 1 का स्टूडेंट है वो उसका एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है, जो क्लास 10 का स्टूडेंट है उसका एक अलग स्टैंडर्ड है। तो ये जो कैटेगरीज हैं या जो ये क्लासिफिकेशन है उसको करना इजी हो जाता है बाय टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सेकंड थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्किल्स। आइडेंटिफिकेशन स्किल्स का हम विद टेस्ट कर सकते हैं कि दैट इफ दैट पर्सन इज और दैट इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग प्रॉपरली दैट स्किल्स तो डेफिनेटली ही इज इन अ डिफरेंट लेवल। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली ही नीड सम करेक्शन। तो इससे हम उसके स्किल्स को या उसकी जो क्वालिटी है उसको हम इजीली पता कर सकते हैं कि इन विच कैटेगरी ही स्टैंड्स एंड व्हाट ही नीड्स एग्जैक्टली इन विद द ट्रेनिंग मेथड्स। देन इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। और जब हम इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं बाय टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन वी कैन चेक द प्रोग्रेस ऑफ दैट प्लेयर कि उसका जो भी वो सीख रहा है या जो ट्रेनिंग मेथड्स इम्प्लीमेंट की जा रही है, जो इट इज़ इट अ साइंटिफिक और लॉजिकल और ग्रेजुअली एनहांसिंग मेथड, और हमने
किसी बिगनर्स को पकड़ करके और तुरंत ही उसको अगर हम एडवांस स्किल देना स्टार्ट कर देंगे, ही कैन नॉट कैच दैट। तो इन दैट कंडीशन वी कैन improve the performance gradually and we can check that progress कि सपोज एक एथलीट है जो एक 100 मीटर का रेस स्टार्टिंग में 13, 14, 15 सेकेंड से फिनिश कर रहा है, आफ्टर 2 months 3 months ट्रेनिंग इफ इज गोइंग टू डिक्रीज हिज टाइम, वो 10 सेकेंड्स में या क्या पता 9 सेकेंड्स में आ रहा है, तो डेफिनेटली ही इज इम्प्रूविंग। और अगर नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली देर इज सम लैकिंग ऑफ इधर द मोटिवेशन और सम अदर थिंग्स। तो इससे क्या होता है कि जो स्किल है जब हम टेस्ट करते रहते हैं तो उससे इम्प्रूव होता रहता है और उससे पता चलता रहता है कि आर कंडीशन इज गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देन मोटिवेशन is also depends upon the test measurement and evaluation. Suppose if any athlete knows that his timing is going to be reduced by this training, और वो जब प्रूफ करके दिखाई जाता है उसको कि सी by the test कि this is your timing, earlier you were at the 12 seconds, now your timing is 11 seconds, आपने 1 सेकेंड डिक्रीज किया हुआ है, तो इट मीन्स कि उसको ऑटोमेटिकली उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा। एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, एक जो हैप्पीनेस होती है, उससे एथलीट का जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एंड ये बेसिकली सी ऐसे वर्बली किसी को बोल देना कि यू आर डूइंग गुड दिस एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थिंग कि योर परफॉर्मेंस इज गोइंग हाई और यू आर गोइंग इन असेंडिंग वे, और वो दिखाई पड़ रहा है कि आप जब आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है और आपने साइंटिफिकली उसको प्रूफ किया स्टूडेंट्स को कि सी यू आर पासिंग विद दिस प्रोसीजर, आपका ये ट्रेनिंग हो रहा है, आपका ये टेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, और देन आपको जो ट्रेनिंग है वो आपको परफॉर्मेंस इन्हांस करने में हेल्प कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड होगा। इसके बाद में फॉर द गोल सेटिंग, इफ वी नो द कंडीशन ऑफ the athlete, we know the exact condition of the athlete, we can set the goal like अगर हमें पता है कि कोई प्लेयर प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, उसके जो बेसिक्स हैं क्लियर हैं, नाउ ही इज परफॉर्मिंग एट द एडवांस लेवल, तो डेफिनेटली हम उसके लिए गोल सेट कर सकते हैं कि दिस ईयर यू आर परफॉर्मिंग अंडर 12, नाउ यू आर मैच्योर प्लेयर, तो नेक्स्ट यू कैन गो फॉर द अंडर 14 और सम अदर डिफरेंट परफॉर्मेंसेज और सम अदर even tournaments etc. If you don't know the exact condition of that player, तो हम उसको ये भी नहीं बोल सकते हैं कि now you are ready to play और आप किसी भी मैच को या टूर्नामेंट को खेलने के लिए सफिशिएंट इक्विप्ड हो। तो टेस्ट मेजरमेंट एंड जो इवेल्युएशन है, इससे हमें इसको हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्लेयर एंड वेयर ही कैन परफॉर्म एग्जैक्टली। Then to predict performance potential, yes, by the test measurement and evaluation, अगर हम लोग किसी का potential check कर सकते हैं तो हम ये predict कर सकते हैं कि what will be the performance of that particular athlete in the next year। अगर हमने देखा हुआ है कि last 6 months की ट्रेनिंग में इस एथलीट ने अपना 1 सेकेंड रिड्यूस किया हुआ है, तो ये कन्फर्म है कि अगले 1 साल के बाद में ही इज एबल टू रिड्यूस 1 और 1.5 सेकेंड, एंड देन इसका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो अप्रॉक्स 10 सेकेंड्स के आसपास होगा। दैट टाइम ही कैन गो फॉर अ नेशनल टूर्नामेंट जहाँ का रिकॉर्ड्स इसके आसपास का है, तो वी कैन प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस और वी कैन प्रिडिक्ट दिस प्लेइंग लेवल ऑल्सो। देन फॉर फाइंडिंग आउट द एथलीट्स नीड बाय टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, हम ये चेक कर सकते हैं कि एथलीट्स की एग्जैक्टली नीड क्या है, कहाँ पर ऐसी लैकिंग्स रह जा रही हैं जहाँ पर उसको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या उसको साइंटिफिक वे नहीं मिल रहा है, तो उसको हेल्प मिलती है विद द टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। देन फॉर द रिसर्च पर्पस, यस डेफिनेटली टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन से हमें फिजिकल फॉर्म पता होता है, हमें एग्जैक्ट फैक्ट्स पता होते हैं कि जो भी हम साइंटिफिक मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो यूज़फुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें हमें नया ऐड क्या करना है जिससे कि उस एथलीट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों, प्लस जो प्रॉब्लम्स दूर नहीं इसलिए हो पा रही हैं
उनके लिए जो रिसर्चर्स हैं वो नेक्स्ट रिसर्च के थ्रू या स्टडी के थ्रू कुछ नए प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल करके लाते हैं, जिससे कि उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स उसको मीट आउट करने में इजीली हो। प्लस ये जो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है, इससे जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जो कोचिंग सिस्टम्स है, उसका भी इवेल्युएशन होता है। बिकॉज हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर किसी भी एथलीट का परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रहा है, उसकी जो कंडीशन है वो कंटिन्यूसली सेम बनी हुई है, तो इट मीन्स कि दैट ट्रेनिंग मैथडोलॉजी और द ट्रेनिंग कहते हैं कि कोचिंग जो तरीका है दैट इज़ नॉट साइंटिफिक, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज़ वाई द एथलीट इज़ नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। तो हमें उसको भी चेंज करने के लिए फिर हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। देन आफ्टर द टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टेस्ट by which we can measure our physical fitness or our height and weight ratio or our exact physical condition, if we are fit or not. So in this categories we are going to discuss the first test, that is called BMI, body mass index. Body mass index is a very known test in India, generally which we are using for the to calculate the रेशियो बिटवीन द बॉडी एंड वेट। एग्जैक्टली हमारी कंडीशन क्या है, हमारी जो फैट लेवल है बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साथ में हम लोग की जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो क्या है, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द BMI कैलकुलेशन जो इसका फॉर्मूला है दैट इज़ BMI इज इक्वल टू बॉडी अपॉन हाइट स्क्वायर। बॉडी इज इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर्स। जब हम सपोज किसी भी इंडिविजुअल का जो वेट है वो 60 kg है, और अगर उसका जो वेट है वो 1 अगर वो 165 सेंटीमीटर्स का है, तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड बी इन 60 मीटर्स। तो 60 अपॉन 1.6 इंटू 1.6 मीटर्स, इसका जो एग्जैक्टली BMI कैलकुलेशन आएगा वो कुछ आएगा 22 kg पर मीटर्स के अकॉर्डिंग आएगा, मीटर स्क्वायर का। जब हमें ये वैल्यू मिलती है तो इस वैल्यू को हम जो BMI इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स का जो टेबल है, उसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं। सपोज अगर जो ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, इफ़ दैट वैल्यू इज़ बिलो देन 18.5, देन दैट इंडिविजुअल इज़ underweight category. If that value is 18.5 to 24.9, then that body weight is ideal body weight. इसके बाद में अगर वो 25 to 30 के आसपास है तो उसका जो वेट है वो ओवरवेट है। 30 to 35 दैट इज़ ओबेसिटी, क्लास 1 आ जाता है। मतलब जो एक मोटापे की कंडीशन होती है वो वहाँ स्टार्ट हो जाती है। 30 to 35 क्लास 1, 35 to 39 दैट इज़ क्लास 2 ओबेसिटी। यहाँ से जो क्रॉनिक डिजीजेस की कंडीशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड 40 एंड एबव अगर किसी का BMI आ रहा है, देन दैट पर्सन इज क्रॉनिक और एक्सट्रीमली ओबीज। ऐसी ओबेसिटी कंडीशन में ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर या एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी चाहिए। सो द कैलकुलेशन ऑफ BMI इज़ वेरी इजी। इसको हम लोग हर कोई इसको अपना वेट और अपनी हाइट को कैलकुलेट करके बहुत आराम से पता कर सकता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो किस कैटेगरी में है, उसका जो एग्जैक्ट उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है और उसे कितना वापस वेट गेन करना है या वेट लूज करना है। सी BMI जनरली हेल्प करती है हमारी बॉडी में फैट की कंडीशन को शो करने के लिए। प्लस ढेर सारी, एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट दैट द नाउअडेज लाइफस्टाइल डिजीजेस इज इन द सोसाइटी। सो अगर हमें इससे बचना है, या जो लाइफस्टाइल डिजीज चाहे वो डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, अस्थमा हो, इन सब चीज़ों को अगर ज़्यादा क्रॉनिक ओबेसिटी है तो ऑटोमेटिकली ये आपको पकड़ लेते हैं। तो इनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है BMI कैलकुलेट करना। एंड दिस इज़ सिमिलरली एफिशिएंट फॉर एथलीट्स। उनको भी अपने फैट्स का जो लेवल है
वो अपनी बॉडी में बहुत एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इस कैटेगरी में हमारा जो अगला बॉडी टेस्ट है, बॉडी वेट का टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड WHR, मीन्स वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो, जैसे कि रेशियो के अकॉर्डिंग पहले पता है, इसमें टेस्ट के नाम में रेशियो आ रहा है, इट मीन्स दिस टेस्ट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द हाइट एंड वेट प्लस इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी प्रॉपरली एक शेप में है या नहीं है, जो हमारी बॉडी इमेज को एग्जैक्टली इम्प्रूव करता है या उसको उसका जज करने में हेल्प करता है। तो WHR जो टेस्ट है उसको जज करने के लिए हमें बेसिकली जो मेज़र करना पड़ता है वो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस। वेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस हम जब ले रहे होते हैं तो हम नावल रीजन से लेते हैं, जो हमारा ये नॉक्टल कॉर्ड है या नेवल रीजन है, वहाँ से हम लोग अपना बेली फैट को कवर करते हुए अपनी वेस्ट का सर्कमफ्रेंस लेते हैं, और मैक्सिमम हमारे जो हिप का सर्कमफ्रेंस है उसको मेज़र करते हैं। देन वेस्ट के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं हिप के सर्कमफ्रेंस से, और जो हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है उसको देन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको हम फिर वापस पुट करते हैं जो WHR इंडेक्स है। फॉर अ वीमेन इफ the waist hip ratio is below 0.08 then उसका जो हेल्थ रिस्क है वो बहुत लो है, और साथ में उसका जो बॉडी शेप है वो पेयर है। जो अगर उसका जो वैल्यू है इफ़ इट इज़ 0.81 to 0.85 then he is in moderate condition, and if that value is 0.85 then the health risk is high and body shape is apple. Then बात करते हैं for a man, if that value is 0.95 then the health risk is very low. 0.96 to 0.96 to 1 the health risk is moderate, and if it is 1 plus then the health risk is very high. So by this ratio we can measure the distribution of the fat, and plus this test reflects the body image of an individual, कि उसका जो बॉडी शेप है वो कितना अप्रोप्रिएट है, कितना परफेक्ट है, जिससे कि उसकी हम एग्जैक्टली जो उसका कंडीशन है वो हम मेज़र कर सकते हैं। इन दिस टॉपिक, दिस चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक इज सोमेटोटाइप्स। सोमेटोटाइप्स इज बेसिकली टाइप ऑफ बॉडी विच इज categorized as per the distribution of fat, height and weight of that individual. इसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली मिस्टर शेल्डन, W.H. शेल्डन ने जो क्लासिफाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड द ह्यूमन बींग्स इन 3 ग्रुप्स, दैट इज एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ्स. These things depends upon the genetics, even sometimes diet or the traditional culture की which type of fooding or physical activities are present in that society or the countries. Even sometimes the nutrition of the mother and or pregnant mother and the medication or some other things which is basically attached or associated with the development of a child. So these things are the affecting factors of the body weight or the height or physique. Basically, somatotypes refer the shape of the human beings as well as the physique. So जब हम लोग बात करते हैं जो 3 types of somatotypes हैं, in that the first is endomorph. Basically endomorph people ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉडी ज़्यादा शॉर्ट हाइट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉडी वेट के होते हैं, इनका जो राउंडेड फिजिक के लोग होते हैं बेसिकली,
their ability is very low to compete in sports because they have very low speed. No doubt their endurance work is good because they have too much fat and carbohydrate in the body, but इनके अंदर एजिलिटी, स्पीड और जो एक शॉर्ट स्ट्रेंथ की, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात होती है, वो सब बहुत कम होती है. तो दे आर basically unable to compete in the sports field. Their hip is very wide, shoulder is very wide, even stomach out from the body or out from the chest, short arm and leg. Plus इनके साथ जो एक मेजर फैक्टर है, इनकी जो एजिलिटी बहुत कम होती है बिकॉज दे आर द मसल्स आर वेरी हाई. सो these people have some advantage and disadvantage in sports. When we are talking about the advantage in sports for these people, so they have too much endurance, and these people are suited for the high endurance games like power lifting, weight lifting, etc. Even sometimes they are very good swimmers also, and shot put or hammer thrower. But similarly, they have a lot of disadvantages like there is lacking of speed, agility and flexibility, so they cannot participate in maximum games, and the tendency of the body is to acquire too much fats. तो ऐसे कंडीशन में इनके लिए डिसएडवांटेज है कि दे कैन नॉट परफॉर्म इन एवरी स्पोर्ट्स ऑफनली, या बहुत ही इजीली ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. प्लस इनकी जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, वो बहुत इजीली सेकेंड विंड की कंडीशन इनको नहीं मिलती है. प्लस इनका जो रिकवरी फेज होता है ऑक्सीजन डेप्थ का, एनर्जी डेप्थ का, वो बहुत ज़्यादा होता है. प्लस इनके अंदर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बहुत कम होती है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स बेसिकली द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्पोर्ट्स दिस पीपल. देन द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन इज द मेसोमॉर्फ. मेसोमॉर्फ ऐसे लोग होते हैं जो जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होते हैं. इनका जो बॉडी और हाइट का, जो वेट और हाइट का परसेंटेज होता है वो बहुत एक्यूरेट और बहुत अप्रोप्रिएट होता है. बॉडी स्ट्रक्चर इनका बहुत थिक बॉडी बोन होती है, और मसल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेस्ट पर, शोल्डर पर ज़्यादा होता है. इनका बहुत ब्रॉड चेस्ट और शोल्डर होता है, एकदम फ्लैट एब्डोमेन होती है. साथ में ऐसे लोगों के आर्म्स और लेग्स भी जो एंडोमॉर्फ हैं उनसे काफ़ी लॉन्ग होते हैं. ऐसे जो लोग हैं, इनके साथ में इनका जो बिल्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो बहुत सुपर्ब होता है बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एंड द मसल्स इज इक्वल इन द बॉडी. बेसिकली इनके अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ऐसे लोग का जो एडवांटेज है वो ढेर सारे हैं बिकॉज दे आर अप्रोप्रिएट फॉर द एवरी स्पोर्ट्स. दे हैव वेरी गुड स्पीड, एंडोरेंस, इवन स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी. इनकी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती हैं बहुत अच्छी होती हैं. दे आर सुटेबल फॉर एथलेटिक्स, इवन फॉर द टीम वर्क गेम्स ऑल्सो. ऐसे लोगों का जो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा होता है. जो इनके सिस्टम्स होते हैं बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज. सो और प्लस इनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी हम बहुत इजीली इन्हांस कर सकते हैं विद द ट्रेनिंग. सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द मेसोमॉर्फ. मेसोमॉर्फ की जो डिसएडवांटेज हैं वो बेसिकली इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है. प्लस समटाइम्स देयर बॉडीज टेंड टू, इफ दे आर फॉलोइंग अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी फैट को गेन करने के लिए अप्रोप्रिएट होती है, तो बहुत जल्दी वो मोटे हो जाते हैं ये लोग. प्लस इनकी बॉडी में जो कैलोरीज का बैलेंस है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए. अदरवाइज या तो बॉडी लेन होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इनकी जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी. देन द थर्ड वन इज एक्टोमॉर्फ. एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बहुत दुबले पतले और बहुत लंबे होते हैं. बेसिकली इनकी चेस्ट, शोल्डर दोनों बहुत थिन होता है, हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं, एंड हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होती है.
ऐसे लोगों की जो बॉडी की टेंडेंसी है वो मसल्स को कम गेन करने की, प्लस इनका वेट भी कम होता है, बहुत ज़्यादा मसल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम होता है, बहुत लीन होते हैं ऐसे लोग। इनकी जो एडवांटेजेस हैं वो they are appropriate for high flexibility work like performing yoga and other activities. They are very good in that. इनका जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं लाइक जिम्नास्टिक्स है, बैडमिंटन प्लेइंग है, वॉलीबॉल है, क्योंकि लंबे होते हैं ये लोग तो वॉलीबॉल वगैरह में हाइट का एडवांटेज होता है। इवन बास्केटबॉल, हाई जंप्स के लिए जो बहुत हाई एजाइल गेम्स हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। जब हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो बहुत लो एंडोरेंस एथलीट्स हैं ये, इनकी एंडोरेंस और साथ में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग ड्यूरेंस एक्टिविटीज़। इवन दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वेरी विगरस वेट जिसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, या इवन शॉर्ट थ्रोइंग एक्सेट्रा। दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट। Even they are not appropriate for the long durance activities like athletics, cross country or marathon races, but they are good for high agility games. साथ में ही ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी है इनकी बॉडी की वो बहुत जल्दी वेट को लूज़ करने की है, बहुत जल्द इजीली ये लोग वेट गेन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इनको अपना न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ सोमेटोटाइप्स जिसमें कि हमने डिस्कस किया एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। दिस चैप्टर इज कवर्ड। कुछ जगह पर कुछ बुक्स में देयर आर सम प्रोसीजर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट्स ऑल्सो। दैट इज अ वेरी इजी टॉपिक लाइक इफ वी आर गोइंग टू वेइंग आर वेट, तो उसके लिए हम लोग सिंपल वेइंग मशीन्स को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को अपने हाइट का मेजर करना है तो हम स्टेंडोमीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो वॉल की मार्किंग आती है उससे यूज़ कर सकते हैं। फॉर द कार्डियक वेस्कुलर स्ट्रेंथ वी कैन मेजर स्पैरोमीटर। अगर हम ऑर्गन्स की बात करते हैं उसको मेजर करने के लिए, तो सर्कमफ्रेंस के लिए हम लोग बैनर कैलिपर्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट मसल्स को उसको जो मेजरमेंट टेप है उससे भी लेंथ मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर हमें आर्म्स की स्ट्रेंथ नापनी है तो हमें जो हमारी ये ग्लेनॉइड कैविटी है, पीछे डेल्टॉइड मसल उसकी बोन की, यहाँ की जो एक ऊपर जहाँ से दोनों मसल्स मिल रहे हैं, हम हाथ को मूव करके देखते हैं, जहाँ से हमारी बोन मूव कर रही है वहाँ से लेकर और सामने हाथ को पूरा स्ट्रेट करके अपनी मिड फिंगर की टिप तक पूरा इसको हम मेजरमेंट टेप से मेजर करते हैं। सेम थिंग पैर की है, पैर की जो हमारी कैविटी है वहाँ से लेकर के और अपने हिल्स तक मेजर कर सकते हैं। जनरली ये आता नहीं है, अभी इसको सिलेबस में इतना नहीं है और जल्दी पूछा भी नहीं गया है। कभी कभी ये पूछ लिया जा सकता है कि विच आर द मेजरमेंट टूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी, लाइक चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ की हो या फिर हम इसकी बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं, एनर्जी बात करते हैं। फोर्स हम लोग फोर्स मीटर से नापते हैं, फोर्स प्लेट से नापते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स विच मे बी समटाइम्स इंक्लूड इन द पेपर. This chapter is completed now. Once again, please share, like and subscribe the channel, and share with others also so that they can also get benefited. Thank you so much.